यस, द रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। एक दफ़ा अब मैं खुद बताऊंगा इसका आंसर, फिर उसके बाद जो है, ताकि ऑल्दो अब डेटा नहीं पढ़ा मैंने इस क्लास के लिए, वो बच्चे खुद पढ़ लीजिएगा। Explain what is meant by internal economies of scale using an example from the information. Internal economies of scale are fall in average cost, long run average cost, as a result of business producing at a larger scale, large output. Use an example from the information. आरिब, आप प्लीज पहले बताएं, आप क्लास में हैं? यस सर, इधर ही हूँ जी बताएं। सेकंड पैराग्राफ के एंड पे उसने दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। कौन सी सर। इंटरनल इसमें इकोनॉमी? बेटर इलेक्ट्रिकल एंड बैटरी टेक्निकल एस्पेक्ट्स, सर ये बेटर इलेक्ट्रोड डिजाइन। ये भी ठीक है, इससे टेक्निकल इकोनॉमीज आ रही हैं। और बताओ, बहुत साफ साफ उसने नाम लिए मेरे बेटा। और परचेजिंग इकोनॉमीज जो उसमें ऑफ स्केल। हम्म सर टेक्निकल इकोनॉमीज और परचेजिंग इकोनॉमी, टेक्निकल परचेजिंग इकोनॉमीज एंड इकोनॉमी स्केल। परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिल्कुल ठीक है। इन बैटरी प्रोडक्शन व्हेन दे बाय रॉ मटेरियल्स एंड कैपिटल इक्विपमेंट इन बल्क। तो दे आपके 3 मार्क्स, सिवाय उन बच्चों ने जिन्होंने सिलेबस को बिल्कुल नहीं हाथ लगाया हुआ, ये तो ओ लेवल से आप पढ़ते आ रहे हो, शुड बी इजीली डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुड चैलेंज even smart kids. Consider what is meant by minimum efficient scale and to what extent the data in table 1.1 suggests this has been achieved. Partially from the data है। पहले तो कोई बच्चा इंक्लूडिंग ईमान मिनिमम एफिशिएंट स्केल को डिफाइन कर दो। Economies of scale have achieved and diseconomies have been avoided. Very nice. It's the point on long run average cost curve where firm has exhausted achieved economies of scale and diseconomies of scale have been avoided. This is the lowest cost point on the long run average cost curve. जी, अब मैंने रिपीट करवाना है किसी और बच्चे से। लेट मी हैव अ लुक एट द नेम्स। लेट्स सी, उजनूर वड़ाइच। मेरा बेटा रिपीटेड मिनिमम एफिशिएंट स्केल, MES क्या होता है? कम ऑन उजनूर। ओके, अमल फैसल। Sir, it is the point, it is the lowest point on the long run average cost curve, in which all the economies of scale have been achieved and diseconomies of scale have been avoided. Perfect, beautifully answered. उजनूर, be more confident, you're a very smart kid, very well done. जी, अब बताएं जी, टेबल 1.1 में दो टेक्नोलॉजीज उन्होंने एनुअल प्रोडक्शन बताई हुई है और उनकी कॉस्ट पर किलोवाट बताई हुई है। कौन सी टेक्नोलॉजी में आपको लगता है मिनिमम एफिशिएंट स्केल आ गया है और अभी तक दूसरी में नहीं आया, या जो भी आपको लगता है? देखें जरा एवरेज कॉस्ट, देखें क्या हो रही है ए में और बी में। किस में लगता है कि मिनिमम एफिशिएंट स्केल अचीव हो चुका है? सर टेक्नोलॉजी बी। टेक्नोलॉजी बी, क्योंकि 4 and 10 मिलियन पे 80 आंसर है। कॉस्ट अब लोएस्ट हो चुकी है, बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी ए में क्या हो रहा है? Sir, it is still falling. It's still falling. Average cost is falling, means economies of scale have not been fully exhausted. Let me just have a look. आज कम आए हैं बच्चे A2 के, I don't know why. बहरहाल जी, so this first two questions, I think very smart kids will get all 6 and others will get 5. Some will mess it up and get around 3. But मेरा नहीं ख्याल कोई भी इसमें 0 मार्क लेगा। अभी तक all of you are nearing A and B. Majority are between that. Some are at A star and even distinctions. Right? Abhi tak. Ab let's quickly look at the mark scheme. Let's see if we were right. Internal economies of scale are a reduction in long run average cost, LRAC, as the firm increases its output. Technical economies or purchasing economies. Candidate may use better electrode design, etc. for the information. 1 mark. तो तीनों मार्क आ गए। Minimum efficient scale is the first output level on the long run average cost curve when further reduction in average cost no longer takes place. 1 mark.
Technology A suggests that MES has not been reached, 1 mark. Technology B suggests that MES has been या have been reached. ठीक हो गया मेरे बच्चों? Just for my own satisfaction, I am drawing the diagram for economies and diseconomies of scale, which shows. हम बेटर क्वेश्चन के लिए, बेटर आंसर के लिए इसमें वो डायग्राम बना सकते हैं? बना दें। जैसे उसने क्या कहा हुआ सीआई ने कि अगर स्टूडेंट टेबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में बात करता है उसको मार्क्स दो, लेकिन डायग्राम बनाओ तो सही लेबल करो, कॉस्ट, आउटपुट, और सही ड्रॉ करें विद प्रॉपर लेबल्स, लॉन्ग रन, एवरेज कॉस्ट। एक लॉन्ग रन में कई शॉर्ट रन होते हैं। शॉर्ट रन की शेप इज ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड देन डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये है जी लोएस्ट पॉइंट, शॉर्ट रन, एवरेज कॉस्ट 1। ये नीचे क्यों शिफ्ट हुआ था? हमने मजीद कैपिटल ऐड कर दिया था जैसे ही डिमिनिशिंग रिटर्न्स आना शुरू हुआ, और ये अब इतना बड़ा हो गया बिजनेस के कैपिटल ऐड करने के बावजूद कॉस्ट बढ़ रही है। यहाँ तक हमें आ रही हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यहाँ पे आ गई मिनिमम एफिशिएंट स्केल, यहाँ पे आ रही हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। जस्ट फॉर माय ओन सेटिस्फैक्शन मैंने कहा बच्चों को एक बार करवा लो। और एक्सटर्नल का कैसे बनाते हैं आप? एक एवरेज कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन नीचे लगाते हैं, फिर उसको ऊपर कर देते हैं, और फिर नीचे वाला शोज इकोनॉमीज ऑफ स्केल और ऊपर वाला शोज मार्केट इज बिकम टू लार्ज, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। वो पूरा शिफ्ट होता है। चलिए ये हो गया जी। लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चंस। दोनों क्वेश्चन आसान थे, आप लोगों ने अच्छे आंसर दिए। एनालाइज विद द एड ऑफ अ डायग्राम। अब आपके पास चॉइस नहीं है, कम से कम 3, 2 या 4 मार्क्स तक भी हो सकते हैं डायग्राम के। एनालाइज विद द एड ऑफ अ डायग्राम, जब वो कहे ना डिस्कस, तो उसमें फिर कम मार्क्स होते हैं। एनालाइज में डायग्राम इज हेवीली रिवॉर्डेड। The likely impact of the change to EV on the labor market for workers producing ice in southern Germany. पहले तो हम जाके जरा देखते हैं उसने डेटा में क्या बोला। The shift to EVs will cause redundancies for highly skilled mechanical engineers who have developed and refined the ice. Often these workers are concentrated in specific areas such as southern Germany. अब मेरे बच्चों वापस क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे बताएं लेबर मार्केट का डायग्राम है, सबसे पहले मैं क्या लेबल करूं? वेजेस एंड लेबर। शाबाश, वेजेस, लेबर। कुछ बच्चे और स्कूल्स के हैं, क्रेसेंट के और उसके बीसीपी के। आपके सर शायद वेजेस, एम्प्लॉयमेंट या एल की जगह एन लिखते हो। टोटली एक्सेप्टेबल है। नंबर ऑफ वर्कर्स, लेबर, वेज रेट, ठीक है। अब जी आपने डिमांड कर्व लगाया, सप्लाई कर्व लगाया मैकेनिकल इंजीनियर्स और ऐसे वर्कर्स का। अब क्योंकि इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है ईवीज पे, दुनिया की इकोनॉमीज, तो ऐसे वर्कर्स के क्या इफेक्ट आएगा मुझे बताइए। डिमांड कम हो जाएगी। वेरी नाइस, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट बिकॉज अब इनका एमआरपी गिर रहा है। वेजेस कम, नंबर ऑफ वर्कर्स, जॉब लॉसेस। ये सिंपल 3 to 4 मार्क्स का आपका डायग्राम है विद एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स। लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। अब सर ये लेबर मार्केट का है। बेटे खुद देखो, जब उसने कहा है लेबर मार्केट, उसने क्वेश्चन में बोला है ऑन द लेबर मार्केट, या वैसे भी अगर वर्कर्स का है तो लेबर मार्केट का क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब मुझे बताइए, जरा एक्सप्लेन कीजिए इस डायग्राम को। कोई बच्चा पहले एक्सप्लेन करो, फिर जरा मुझे बताओ विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल अकर, और इसको हम खत्म करते हैं बात को। 6 मार्क्स हैं, 2 से 3 आपको ड्राइंग के मिल चुके हैं। बोलिए शाबाश सर। ऑक्यूपेशनल अनएम्प्लॉयमेंट सर। बोले स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये किसने बोला है? सर मार्शल। ओ मार्शल, वेल डन, शाबाश। और बताएं जी, डायग्राम को एक्सप्लेन करें, व्हाट इज हैपनिंग। Sir, can we say that due to the reduced demand of mechanical engineers in this sector, the demand curve has shifted from D0 to D1. Very nice. Following a fall in the marginal revenue product produced by every worker in the next. Very well done, very well done. अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? Because labor's demand is derived, it depends on demand for goods and services. As demand for ICE engines will fall,
demand for engineers, workers making ICE engines will fall. As a result, it will shift to D1. Wages will fall, number of workers hired will be less. This will cause structural unemployment. अगर यहाँ डिस्कस होता तो मैं बोलता it will depend on PED of workers, how much demand will fall, how much wages will fall. एहतियातन लिख दें, कोई मसला नहीं है. Let us go to the mark scheme, verify it. Simply जी leftward shift, wages, labor. मैं CI oriented हूँ, मेरे सारे labels CI से लिए हुए हैं. Identifies that unemployment is structural या occupational, 1 mark. This will reduce wages as demand falls, 1 mark. Need for retraining, 1 mark. नहीं भी है तो डायग्राम के 3 पूरे हो रहे हैं हमारे. तो उसके बाद जी shift of demand from D to D1 shows a fall in wages W to W1, fall in labor L to N1, increase in unemployment. Axis labels का 1 mark है. कितना straight forward question था. 4 तो सबके आने चाहिए, 6 भी कुछ के आ सकते हैं. जी मेरे बच्चों, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? No, sir. Very nice. Okay जी. Expect similar difficulty in your paper as well. अब जी last question, which is usually the toughest. Evaluate. मेरी बेटी का इंग्लैंड से फोन आ रहा है. Let me just tell her. Assalamu alaikum Ashlina and Miss Pa, I'm so sorry, I'm in my live class. I'll talk to you guys later, okay? Allah Hafiz. All right, ji. Evaluate the likely macroeconomic effects of the switch to EV for both Saudi Arabia and Singapore. कुछ information data में है, उसी को हमने expand करना है. लास्ट पैराग्राफ एक बार सब बच्चे पढ़ लो. Macroeconomic effects means look at all the macroeconomic indicators. GDP, unemployment, inflation, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनकम इक्वालिटी, जो भी आप इंडिकेटर लेंगे आपका काम आसान हो जाएगा. सो आई वांट हाफ ऑफ दिस क्वेश्चन टू बी आंसर्ड बाय ज़ुनैरा. कॉन्फिडेंस से मेरे बेटे डेटा से इंफॉर्मेशन लो. क्वेश्चन एक बार फिर देखो. इवैल्यूएट द लाइकली मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द स्विच टू ईवी फॉर बोथ सऊदी अरेबिया एंड सिंगापुर. सऊदी अरेबिया को नेगेटिव इंपैक्ट क्या आ रहा है बताएं, और फिर कोई पॉजिटिव्स आ सकते हैं बताइएगा. कम ऑन ज़ुनैरा, शाबाश. आर यू देयर? आई डोंट थिंक शी इज देयर. ओके, आमना मलिक भी नहीं है. किससे बात करूं मैं? आरिज, आर यू देयर? सर क्वेश्चन एक दफा रिपीट कर देंगे? श्योर मेरा बेटा. Evaluate the likely macroeconomic effects of the switch to EV for both Saudi Arabia and Singapore. Macroeconomic effects: GDP, GNI, unemployment, balance of payment, income equalities, inflation. इन सब पे आप कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके माइंड में आ रहा है. सऊदी अरेबिया के लिए मानूर हैदर, माय बेटा, वुड यू बी काइंड इनफ टू आंसर? Where are all these kids? मुझे नजर तो आए थे. चलें. Saudi Arabia receives 45% of its gross GNI शाबाश, बोलें from शाबाश. oil exports. तो उससे जो है वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होता है. क्या होता है? बुरा होता है. अच्छा, ये अच्छा बुरा किसने सिखाया आपको? मैंने तो नहीं सिखाया. डेफिसिट होता है. Deficit. Saudi Arabia heavily relies on export of oil. Their GNI contains 45% of exports from oil. So उनकी तो half the economy रह जाएगी. X minus M part will withdraw. अब इनके GNI तो उसने बता दिया, 45% कम होगा. अमल अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा सऊदीया में? सर अनएम्प्लॉयमेंट
ज्यादा होगी। हाँ काफी ज्यादा होगी। अनएम्प्लॉयमेंट के रिजल्ट में कौन सा इफेक्ट आता है जो हमेशा मैं बोलता हूं? सम अदर किड आंसर मी। Downward multiplier. Downward multiplier effect. Shabash. Someone wants to make the diagram, make it. I'll make it for you later. जी, और अब बताएं, अनएम्प्लॉयमेंट कर लिया, GNI कर लिया, मुझे बताएं बैलेंस ऑफ पेमेंट कर लिया, मुझे बताएं व्हाट विल हैपन टू इन्फ्लेशन इन सऊदी? इंक्रीज कर जाएगी सर। मेरा बेटा आरिज, यस सर। x माइनस एम गिर रहा है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगी? सर डिक्रीज कर जाएगी। Aggregate demand is shifting to the left. Demand pull inflation will reduce. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूएशन बाद में कर देंगे। जी मेरे बेटा सर, बोले। अगर it says Saudi Arabia receives 45% of its GNI from oil exports, तो उससे ट्रेड सरप्लस नहीं होगा? बेटे आइस पे हट के हम ईवी पे जा रहे हैं। उसने खुद बोला may cause difficulties for government in two ways. First, many countries like Saudi Arabia rely on oil exports. X वाला पार्ट उनका गिर रहा है by 45%. उनका नेशनल इनकम गिर रही है, ट्रेड डेफिसिट में जा रहे हैं। ओके सर, वो मैंने पढ़ा नहीं था। पढ़ा नहीं? इसको जरूर पढ़ा करें प्लीज, बड़े ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम इसको फिंगर्स पे काउंट करते हैं हर मार्क को। As written in the article, Saudi relies heavily on oil exports. As countries by 2030 switch from ICE to EV cars, the demand for oil will fall. Their exports will fall, which construct 45% of their GNI. This will cause shift of aggregate demand to the left because of net exports wala part girega. This will further lead to unemployment, which may lead to downward multiplier effect. इसके अलावा the benefit for Saudi Arabia might be as a fall in aggregate demand may reduce demand pull inflation pressures in the country. Inflationary pressures कम हो जाएंगे, right? अब यहाँ पे evaluation मैं कैसे करूँगा? However, it will depend on whether electricity produce करने के लिए हमें oil चाहिए, क्योंकि अभी तक दुनिया ज्यादातर ऑयल फायर्ड या गैस फायर्ड प्लांट्स के थ्रू बना रही है, न्यूक्लियर पे आ रहे हैं लेकिन अभी नहीं है। तो एज अ रिजल्ट ऑयल डिमांड में नॉट फॉल बाय दैट मच एज द डेटा सजेस्ट। ठीक हो गया? अब मेरे बच्चों सिंगापुर पे जाओ, रेज योर हैंड्स, खुद ही आंसर दो, मुझे बताएं सिंगापुर की गवर्नमेंट को क्या नुकसान होंगे और वो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं? Their revenue from indirect taxes placed on petrol and gasoline consumption. कोट करें 17% ऑफ द प्राइस वो चार्ज कर रहे हैं, 0.41 सेंट्स पर लीटर चार्ज कर रहे हैं, उनका तो हेवी डिक्लाइन इन रेवेन्यू आएगा। उससे क्या नुकसान होगा? गवर्नमेंट का बजट विल बिकम, so they will become unstable and they cannot plan for it and अनस्टेबल नहीं, अच्छा वर्ड यूज करें, इकोनॉमिक बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट होगा। दे विल नॉट बी एबल टू स्पेंड ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ। ठीक है, हाउएवर क्या कर सकते हैं सिंगापुर? They can move to increase direct taxes to recover this fall in revenue. ठीक है, समझ आ रही है? इसको हमेशा आपने इस तरह करके हैंडल करना है। लास्ट पार्ट इज ऑलवेज द टफर। अब टू कंक्लूड, majority countries like Saudi Arabia and Singapore will suffer from this switch. It will depend on how much they invest on renewable energy, how much electric vehicles की electricity produce करने के लिए oil की requirement है, can they switch to other types of taxation? Otherwise, looks like they're going to have a negative impact on them. समझ आ गई मेरे बच्चों? कोई confusion? एक बार फिर कर लें ये question. ओके, लेट मी जस्ट, हाँ मैं करवाता हूँ एक बार। मैं आपको दोबारा बिल्कुल करते हैं। मैं सोच रहा था कि बच्चों का फुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो व्हाई नॉट एक बार मैं डाउनवर्ड मल्टीप्लायर का डायग्राम जो अब्दुर्रहमान मुझसे बार बार पूछते रहते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मेरा बेटा। इधर आपने लिखना है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इधर आपने लिखना है वाई डी लिखो, ज्यादा अच्छा है, डिस्पोजेबल। 45 डिग्री लाइन का हम यूज करते हैं।
जिसका काम क्या होता है, एट ऑल पॉइंट्स AE जो कि एक्सपेंडिचर है यानी डिमांड इज इक्वल टू Y विच इज GDP आउटपुट समझ लो, एग्रीगेट सप्लाई समझ लो। अब ये हमारा पहला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व था, यहां पे इक्विलिब्रियम आया था, इतनी नेशनल इनकम थी। अब एज अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑयल, रिड्यूस्ड टैक्सेस फॉर सिंगापुर, हमारा नोट करो A to B थोड़ा सा विड्रॉल आया है और नेशनल इनकम मल्टीप्लाइड गिरी है। दिस रियली एड्स क्वालिटी टू योर आंसर। अब्दुर्रहमान, आज आपको ये डायग्राम समझ आया? सर ये 45 डिग्री लाइन वाली बात अभी नहीं समझ आई। 45 डिग्री लाइन इज जस्ट एक्यूट एंगल, और इसका काम क्या होता है, हर पॉइंट पे दोनों वेरिएबल, चाहे प्राइस क्वांटिटी लिखा हुआ है चाहे AEY लिखा हुआ है, बराबर है। अब जब हमने सर ये असल डायग्राम लगा एक दफा दिया, समझा दें तो अब वो डिमांड कर्व बन गया, एग्रीगेट डिमांड, और Y अब एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां कटे सर मेरा एक सवाल है, जी सर जी एक सवाल है सर, जब ये डायग्राम ड्रॉ हुआ होता है तो एक इन्होंने नीचे लेबल किया होता है YE, जिसको उन्होंने करंट इनकम कहा होता है, बेटे वो और उसमें YF हम इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप दिखा रहे होते हैं, इसमें हम सिर्फ डाउनवर्ड या अपवर्ड मल्टीप्लायर दिखा रहे हैं, हमने फुल एम्प्लॉयमेंट वाला इसमें नहीं लगाना। ठीक है सर। ओके, चले, वेरी गुड। अब्दुर्रहमान का ये मसला हल हुआ। जी बेटे, दोबारा इस बार एक क्वेश्चन को देखते हैं। उसने कहा इवैल्यूएट, इवैल्यूएट मींस डीपली एनालाइज बोथ साइड्स एंड कम अप विद अ जस्टिफाइड कंक्लूजन। इफेक्ट्स ऑन स्विच फ्रॉम EV टू सऊदी अरेबिया, बेसिक भी बच्चे डेटा यूज करके ही 4 मार्क्स ले सकते हैं। एज स्टेटेड इन द आर्टिकल, as countries switch from ICE engine cars to EV cars, as a result, countries like Saudi Arabia, who rely heavily on oil exports, which makes 45% of their GNI, will suffer from reduced revenue from exports. This will cause aggregate demand curve to shift to the left, causing a downward multiplier effect. Their economic growth will fall, their unemployment will rise, their balance of payment may go into deficit, use the right terms. उसके बाद मेरा बेटा आप आओगे और कहोगे, however demand pull inflation may reduce due to fall in aggregate demand. Saudi Arabia might be able to recover if producing electricity also requires oil. ये अब बच्चों को नहीं पता होता तो कोई मसला नहीं है। They might be able to develop other sources of revenue, यूं कुछ लिख दें, any offsetting factor. Singapore on other hand will lose out a lot of indirect tax revenue, which is 17% of the price of per liter they're selling. So they will lose on indirect tax revenue, which will reduce their spending. Government budget will go into deficit, can cause unemployment. इनका मल्टीप्लायर नहीं करना, सिर्फ एक टैक्स कम हो रहा है, अब मतलब उनके लिए कम पैसा बजट डेफिसिट तक रुक जाइएगा। However, Singapore might be able to regain some of its revenue by increasing direct taxes on income and wealth, because EV जैसी इंडस्ट्रीज की इनकम बहुत बढ़ने वाली है, उसमें बड़े हाई रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वाले वर्कर्स होते हैं, उनका टैक्स रेवेन्यू उधर से कवर हो सकता है। सबको समझ आ गया मेरे बच्चों? To conclude, general effect on both countries seem to be negative. It will depend on between now and then वो कितना एडजस्ट कर पाते हैं अपनी इस डिपेंडेंस ऑन ऑयल या इसके टैक्सेस से। इफ दे आर एबल टू फाइंड अदर एवेन्यूज, अब सऊदीया को देखो तो वो तो टूरिज्म हब बन गया, उसने टोटली वो एक किस्म का दुबई का मॉडल फॉलो किया है, बहुत ही कसिनोज बना दिए हैं और फुटबॉल करवा रहा है वहां पे, उसके तो और सोर्सेज बन गए, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी आ रहा है, तो इतना ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं आएगा। विजन 30 का मतलब ही यही था कि हम ऑयल की डिपेंडेंस से बचें। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र भी कर सकते हैं। बच्चों समझ आ गया? एवरीवन क्लियर? ब्यूटीफुल। लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट द मार्क स्कीम। Saudi Arabia, exports reduced, 1 mark. X minus M of AD reduced, 1 mark. Expected level of output fall, 1 mark. Government may increase government spending to offset exports. Supply may be restricted to maintain price of oil. मैंने कहा था कुछ ना कुछ offsetting बोलोगे तो स्कोर मिल जाएगा, 3 मार्क्स तक मैक्स देगा आपको।
हमने तो इससे बहुत बेहतर आंसर दिया था, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर तक गए थे। सिंगापुर, टैक्सेशन रिसीट रिड्यूस्ड 1 mark, द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन में चेंज 1 mark, बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग में डिक्रीज टू ऑफसेट फॉल इन टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेशन में इंक्रीज ऑन अदर गुड्स या इनकम्स। Evaluation, Singapore effect depends on whether electricity to fuel EV is produced by alternatives to oil. Saudi Arabia effects depend on alternative sources of taxation revenue. Needs a different evaluative comment for both Saudi Arabia and Singapore. ये 2 marks हैं आपको। इसमें आप 5 भी ले लो, you're good, क्योंकि बाकी पेपर काफी simple, straightforward था। Any questions मेरे बच्चों? Excellent. Now this question I long for, जब भी पेपर में आता है मैं कहता हूँ बच्चों को पूरा यूज कराऊं इसका फायदा, इसके आंसर का। ये क्वेश्चन अगर आप लोग मुझे सेंड नहीं करना, मेरे पास टाइम नहीं है, मॉक्स के बहुत पेपर्स हैं। इसका मैं आपको एक CI मार्क्ड पाकिस्तानी स्टूडेंट का मॉडल आंसर अपने ग्रुप्स में भेज चुका हूं, जिनमें नहीं भेजा उनमें भेज दूंगा। प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा तैयार करें, ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मदर ऑफ ऑल क्वेश्चन। सर ये मैंने कल परसों ही किया क्वेश्चन। शाबाश, अब आप देखना इकोनॉमिक एफिशिएंसी आपको आसान लगेगा। मार्केट फेलियर एग्जिस्ट्स इन ऑल इकोनॉमीज। इवैल्यूएट विद द एड ऑफ अ डायग्राम या डायग्राम्स, हम 5-6 बनाएंगे, द मीनिंग ऑफ मार्केट फेलियर एंड 2 पॉलिसीज, हम कम से कम 3 करेंगे, गवर्नमेंट में यूज टू करेक्ट मार्केट फेलियर। मैं क्यों कह रहा हूं ज्यादा डायग्राम बनाएंगे, हम ज्यादा पॉलिसीज करेंगे, क्योंकि जितना एक टीचर समझाता है बच्चे उससे बहुत कम लिखते हैं। टॉप बच्चे तो बहुत ज्यादा लिखते हैं, मेरे से भी ज्यादा लिख जाते हैं, बट कहने का मतलब क्या है, एज अ होल, एज अ ग्रुप, यू गाइस शुड राइट मोर, यू विल स्कोर मोर, बट इन कॉन्टेक्स्ट। हमें बिला वजह की बातें नहीं करनी। तो लेट्स जस्ट पोस्ट दिस क्वेश्चन एंड लेट्स सी व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। इसको मैं आपके सामने बोल्ड भी कर देता हूं एंड लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। की टर्म मेरे बच्चों कौन सी है? एक ही की टर्म है, मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर। अब इसके साथ मैं क्या लिख रहा हूं? इलैबोरेट विद एग्जांपल्स। आपने खाली डिफाइन नहीं करना यहां पे। सो व्हाट इज मार्केट फेलियर? जितना पता है बोलते जाएं। मार्केट फेलियर इज व्हेन, जरा ऊंचा अब्दुलरहमान, आपकी आवाज नहीं आती माइक के पास। सर मार्केट फेलियर इज व्हेन फर्म्स आर अनेबल टू फुलफिल देयर मेन एम्स। रुक गए आप, सही बोल रहे थे सर, लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग और प्रॉफिट सेटिस्फाइजिंग, वो सारा और साथ साथ प्रोडक्टिव एलोकेटिव एफिशिएंसी जब नहीं ये अचीव कर मजा आया ना आंसर का, शाबाश, बोलते जाएं, डिटेल बताएं। मार्केट फेलियर इज अ सिचुएशन where market forces of demand and supply fail to allocate resources in an efficient way, social welfare is not maximized. This can be due to information failure or due to not accounting all costs and benefits. There can be merit goods, demerit goods, negative and positive externalities, imperfect markets like monopolies which cause market failure. ये आपने इनिशियल अच्छा सा एक पैराग्राफ दे देना है। थोड़ा सा मार्केट को भी बता देते हैं। मार्केट इन इकोनॉमिक्स मींस फ्री मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई, which allocates resources according to price mechanism using profit motive as its main incentive. Hence it ignores some things like external costs and benefits, information failures, and look for their profit. Hence they over allocate or under allocate resources. There can be productive inefficiency, there can be allocative inefficiency. अब हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बताएंगे। क्या होती है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी? ईमान, यू कैन स्पीक, मेरा बेटा बताएं। है बच्चे कहां गए? बच्चे
बच्चे तो मौजूद हैं। अमीन बेटे आप बता दो व्हाट इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी?